the main motive is to motivate the agriculture students and the common mistakes they do at the initial stage only, where you are mistaken and how you are planning and how you should plan your journey. I quit Mahindra and I started my process for the abroad. वहीं पे आइडिया आ जाता है कि ये लाइक ही जस्ट वांटेड टू कम बट ही इज़ नॉट इनटू इट। एक थोड़ा सा डर रहता है मन में कि कैसे बात करें, क्या होता है प्रोफेशनल में, कैसे बात करना होता है। बेसिकली वही जो डर अपने अंदर रहता है। सो डू नॉट लेट दैट फियर होल्ड यू बैक। Hello everyone, my name is Indri Sapka and welcome back to our channel Agri Abroad. So if you are planning to do agriculture studies in abroad, then do like, comment, share with your friends and subscribe to this channel. So in today's video we will be talking about how I was admitted to agriculture business management course here in Canada. So uh, the motive of this video is not just to tell my story or not to show off how I made it here, but the main motive is to motivate the agriculture students and the common mistakes they do at the initial stage only, which keeps them holding at the backstage. So I just want you guys to watch this video till the end so that you get to know where you are mistaken and how you are planning and how you should plan your journey if you are planning to study abroad. Okay, so let's get started. So basically, I belong to a small village in India called Hatnur, and after that, we moved to a city where I completed my 11th and 12th in Kirloskarwadi. After that, I got admitted to agriculture engineering course in one of the topmost agriculture university in Maharashtra, that is Rahuri University, and I completed 4 years graduation course there. I did my agriculture engineering course, and after which, like, from agriculture, when I was in agriculture engineer, since then it was on my mind to do agriculture related something in abroad, not fixed with agribusiness, but yeah, something to do in agribusiness in abroad. So it was already on my mind, but afterwards I got placed after my graduation. I got placed in Mahindra and Mahindra, where I worked for 2 years. I got a good experience working there as a territory sales business manager. Then later on, along with my friends, I started a business and it's still functioning in India. So, and after which, uh, after 2 years in Mahindra, I decided that I should keep on with my dream. I had to go abroad, and what's on my mind, I had to chase it. So I quit Mahindra and I started my process for the abroad. And like almost every one of us, I was completely blank. I don't know which country to choose. I don't have any idea which course to choose, which college to choose, what are the things to consider, and I was completely blank and I quit Mahindra at that stage. So basically, after that I went to few consultants, like I came here through consultancy called IDP. It's very one of the free consultancy in India, and they are very friendly, and they had their consultancy services in many major cities in India. So you can opt those consultancy if you want. I would really suggest to go with consultancy because मैं आपको information दे सकता हूँ, मैं I'll guide you with each and every step, but as you know कि एक कहीं ना कहीं तो डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं क्योंकि ये ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं अपन, फ्यूचर का डिसीजन है, तो एक डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ। मैं आपको साइड बाय साइड गाइड करते रहूँगा। अगर कंसल्टेंसी में कुछ लग रहा है तो आप वीडियोस देख के आप यू कैन सजेस्ट देम लाइक यू वांट दिस, यू वांट दैट। सो बेसिकली कंसल्टेंसी के थ्रू एक एश्योरिटी हो जाती है, अगर कंसल्टेंसी अच्छी है तो एक एश्योरिटी हो जाती है कि अच्छा खासा प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, और उनके भी कोई थोड़े कॉन्टैक्ट्स रहते हैं विच कैन हेल्प यू इन गेटिंग एडमिशन्स इन कॉलेजेस। और मेरा भी लाइक व्हेन आई स्टार्टेड द प्रोसेस, लिटरली आई हैड ज़ीरो कॉन्टैक्ट्स इन कनाडा। मेरा कोई एक भी कॉन्टैक्ट नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रहता है कि मेरा ये है वो है, तो वो कॉन्टैक्ट के थ्रू चले जाते हैं। आई सर्च फॉर यूट्यूब, यूट्यूब पे भी कोई वीडियो नहीं था तब कि एग्री रिलेटेड क्या कर सकता है कनाडा में, क्या नहीं हो सकता, प्रोसेस क्या रहेगी, एग्री का स्कोप क्या है, तो कुछ भी था नहीं। आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक एंड आई स्टार्टेड द प्रोसेस बाय माई ओन। तो मैं जब लाइक कंसल्टेंसी पे भी फर्स्ट टाइम गया, तो एट द एंट्री ओनली दे आस्क्ड मी कि विच कंसल्टेंसी यू वांट टू, लाइक विच कंसल्टेंट यू वांट टू मीट, लाइक फॉर विच कंट्री।
एंड देयर ओनली आई वॉट कम्प्लीटली ब्लैंक बिकॉज आई हैड नो आइडिया कि मुझे ही कहाँ जाना था. सो आई आस्क्ड देम लाइक शो मी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा. तो मैंने 3-4 मीटिंग्स बुक कर ली थी और मैंने सारे कंसल्टेंट वहाँ पे जो थे तो सारों से बात कर ली. उनके थ्रू थोड़ा आइडिया लिया, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह शॉर्टलिस्ट किए, कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए. एंड आफ्टर दैट मैंने खुद का रिसर्च स्टार्ट किया कि कहाँ जा सकते हैं, कौन से एडमिशन्स ले सकते हैं. कॉलेज की वेबसाइट पे गया, वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसका स्कोप क्या है. मैंने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया, लिंक्डइन के थ्रू बहुत लोगों को कांटेक्ट किया हु वाज ऑलरेडी इन कनाडा. डिफरेंट कोर्सेज़ के थे, डिफरेंट कॉलेजेस के थे, बट आई नेवर गिव अप. मैंने इंस्टा पे, लिंक्डइन पे जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ सबको मैसेज किया, उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की. एंड वैसे करके यहाँ पे आया. एंड और यहाँ पे जब मैं आया तब मेरा ज़ीरो कांटेक्ट था. कोई कांटेक्ट ऐसा था नहीं कि ये मेरे लिए ये सब किया हुआ हो, रेडीमेड यहाँ पे तैयार हो. और फिर भी आई गॉट हियर एंड इट्स बिन 1 ईयर एंड इट्स ऑल गोइंग गुड. मेरा पार्ट टाइम जॉब भी चल रहा है, फुल टाइम जॉब भी करंटली मैं करंटली आई एम ऑल्सो डूइंग माई फुल टाइम जॉब इन कारगिल. सो एवरीथिंग इज़ करंटली गोइंग गुड. और ये सब बताने का मकसद यही है कि गिव अप मत करना. लाइक एज वी नो कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स में एक अलग बॉन्ड रहता है. whenever we see someone and whenever they tell us that I am from the agriculture background, तो एक बॉन्ड शेयर होता है कि लाइक ओके ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम द एग्रीकल्चर. तो मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर वाले यहाँ पे आ जाए, नॉट ओनली फ्यू. कि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ अच्छी खासी है, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. देन व्हाई नॉट इंडियन, व्हाई नॉट फ्रॉम आवर एशियन कंट्रीज़. सो आई वुड सजेस्ट कि गिव अप मत करना. जहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट करते हो तो होल्ड करके रखना, क्योंकि बहुत सारे लाइक विद इन अ ईयर मुझे भी कई लोगों का मैसेज आया है. लाइक आई हैव हंड्रेड्स ऑफ DMs ऑन इंस्टाग्राम. बट होता ये है कि लाइक दे मैसेज मी कि हेलो सर, दिस इज़ माई बैकग्राउंड, आई एम स्टडिंग दिस एंड प्लीज़ गाइड मी. एंड आई रिप्लाई लाइक ओके श्योर, व्हाट गाइडेंस डू यू एक्चुअली नीड. ओके, और वहीं पे वो ब्लैंक हो जाता है. तो लाइक ब्लैंक होता है, फिर 1-2 दिन बाद मैसेज आता है, सर आई वांट टू नो अबाउट की स्कोप क्या है और यहाँ की फ़ीस क्या है. बस इतने में उनका ख़त्म हो जाता है. तो वहीं पे आइडिया आ जाता है कि ये लाइक ही जस्ट वांटेड टू कम बट ही इज़ नॉट इनटू इट. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि यहाँ आना है तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस. डू रिसर्च, क्वेश्चंस पूछना, मैसेज करना बहुत सारे लोगों को. इट्स नथिंग राइट और रॉन्ग. हमारे एग्रीकल्चर का वही होता है कि लाइक वी आर फ्रॉम आवर फार्मर्स बैकग्राउंड, वी ट्राई टू गिव अप. लाइक एक थोड़ा सा डर रहता है मन में कि कैसे बात करें, क्या होता है प्रोफेशनल में, कैसे बात करना होता है. नथिंग टू वरी अबाउट. जैसे हो जो इस लैंग्वेज में आ रहा है, एक फॉर्मेट बना लेना मैसेज का कि तो वही फॉर्मेट कॉपी पेस्ट करते हुए जितने भी कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं सबको मैसेज करना, सबको पूछना क्वेश्चंस वगैरह, और इसके थ्रू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट करो. क्योंकि बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे. फ्यू ऑफ देम हैव ऑलरेडी अराइव्ड इन कनाडा, फ्यू ऑफ देम आर कमिंग इन द सितंबर इनटेक इन कनाडा, एंड आई एम ग्लैड कि उन्होंने गिव अप नहीं किया. तो आई वुड सजेस्ट कि गिव अप मत करना. जो कुछ भी है कंटिन्यू करते रहना. लाइक यहाँ आते हो तो अच्छा होने वाला है, बट यहाँ पे पेशेंस देना पड़ेगा, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है. जो भी लाइक अगर किसी भी कॉलेजेस में जाते हो तो वहाँ पे हर कोई रोना, आपको कहीं पे भी जाओगे तो दुनिया में लोग रोते हुए नज़र आते ही है. तो कहीं पे भी जाओ वो रोना तो कहीं पे भी रहेगा, बट यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आप कनाडा आते ही फटाक से आप लाइक मस्टैंग खरीद ली, कुछ बड़ा कर दिया, ऐसे नहीं होता. लाइक यू हैव टू गिव टाइम. सब गाने बजेंगे बट टाइम के टाइम बजेंगे. तो वही है बेसिकली, वही जो डर अपने अंदर रहता है. सो डू नॉट लेट दैट फियर होल्ड यू बैक. वो डर को क्रॉस कर लेना, ब्रेक योर फियर, और मैसेज करते रहना जिसके भी हो सके, और हो सके उतना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना. गिव अप मत करना. कंसल्टेंट के ऑफिस में अगर जाना है तो जाओ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो. वो जो डर रहता है उसे डर, लाइक डोंट लेट दैट फियर होल्ड यू बैक. सो प्लीज़, और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर कुछ रहेगा तो मैं स्टेप बाय स्टेप अभी चालू किया ही है, तो स्टेप बाय स्टेप आई ट्राई कि ईच एंड एवरी स्टेप के थ्रू आपको गाइड करूँ. बट यू शुड नॉट गिव अप. लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग देन डू प्लान प्रॉपरली. और नाउ from the next videos I'll start
I'll be making different playlist in our channel where I'll be posting step by step videos. स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर रहेगी कि आपको प्लान कैसे करना है. नेक्स्ट वीडियो आएगा कि आपको स्टार्ट से प्लान कैसे करना है. इफ़ यू आर अ स्टूडेंट करंटली स्टडिंग और इफ़ यू आर करंटली डूइंग जॉब, तो आपको कैसे कैसे प्लान करना है, ये सब का नेक्स्ट वीडियो में आएगा. एज वेल एज आई ऑल्सो मेक अ सेपरेट प्ले लिस्ट वेयर आई बी शोइंग डिफरेंट कंडीशंस हियर इन कैनेडा. लाइक पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल. अकोमोडेशंस का क्या इशू चल रहा है यहाँ पे, तो कनाडा का सिनारियो क्या चल रहा है. आई विल कीप ऑल्सो पोस्टिंग रिगार्डिंग दैट. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ गुड डे. थैंक यू सो मच.